हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन नंबर 7, दैट इज स्वराज द फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट। It is no doubt true that Shivaji and his comrades took the oath of Swaraj in the temple of Raireshwar, but it was a very difficult task. In those days, Maharashtra was governed by four different powers: the Mughal Emperor of Delhi, Sultan Adil Shah of Bijapur, the Portuguese of Goa, and the Siddhi of Janjira. They were powerful opponents, firm in their authority. No one would dare utter a word against them. Under these difficult conditions, Shivaji had taken the oath of Swaraj. There was no comparison between the vast forces of the enemy and a handful of Shivaji's Mavas. But Shivaji's mind was made up, and his firm resolve was his greatest source of strength. तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि जिस टाइम पे शिवाजी महाराज थे उस टाइम पे महाराष्ट्र में अलग अलग चार पावर्स जो है वो रूल कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे महाराष्ट्र को। इसका मतलब ये था कि ये इतने बड़े बड़े एम्परर्स और जो सुल्तान्स है उनके पास में पावरफुल आर्मी थी। इस वजह से कोई हिम्मत भी नहीं करता था कि उनके अगेंस्ट जा सके। लेकिन शिवाजी महाराज ने जो है ये ओथ ली थी कि स्वराज हासिल करना है, और उन्होंने ये ठान लिया था कि भले ही कुछ भी हो जाए हम लोग स्वराज हासिल ही करके रहेंगे। तो ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती थी कि भले ही सामने जो ओपोनेंट है या फिर जो दुश्मन है वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन अगर हम अलग अलग टैक्टिक्स सोच सके तो हम लोग महाराष्ट्र में स्वराज हासिल कर सकते हैं। तो इसमें आता है, सबसे पहले आप देखते हैं कि तोरना फोर्ट पे क्या हुआ था। शिवाजी कंट्रोल्ड द जागीर ऑफ पुणे, सुपे, चाकन एंड इंदापुर. All the forts in the Jagir were, however, in the charge of officers from the court of Bijapur. He who controlled the forts also controlled the surrounding territory, and therefore all talk of Swaraj without the control of the fort was meaningless. A hill fort gave strategic support to the ruler, and Shivaji decided to capture one at a suitable time. For this purpose, he had selected the fort of Torna. It stands to the southwest of Pune in the Kannad Valley. It was a renowned fort, well suited for defense. There were two strong machis on the way to the fort. A machi is a fortification of a natural plateau formed on the slope of a hill. One of these machis were the Zunzar Machi and the other Budla Machi. Zunzar Machi, like its name, could offer powerful defense against the enemy. The only access to the fort was across the Zunzar Machi. It is a very difficult passage with high hills on one side and deep valleys on the other. A careless person may easily lose his balance and end his life in the deep valley. Torna was considered one of the strong forts of Maharashtra. In the fort, there is a temple of the goddess Toranjai. That is why the fort is called Torana. Strangely enough, this powerful fort was neglected by Adil Shah. There were neither enough troops for its defense nor enough ammunition. Shivaji knew this, and this was exactly what he wanted. He decided to capture the fort and thus lay the foundation of Hindvi Swaraj. तो देखिए, सबसे पहला स्वराज का जो पहला एम या स्वराज स्थापित करने के लिए सबसे पहला जो मिशन है, अगर हम मिशन बोले तो वो था हमारा तोरना फोर्ट। तोरना फोर्ट जो है वो बीजापुर के अंडर, बीजापुर कोर्ट के अंडर आता था, बीजापुर कोर्ट की जागीर के अंडर आता था। देखा जाए तो ये फोर्ट स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था, क्योंकि एक तो ज़्यादा हाइट पे है और डिफेंस के लिए सबसे वेल सूटेड माना जाएगा। तो शिवाजी महाराज ने यही सोचा कि अगर हम तोरना फोर्ट को कैप्चर करते हैं तो हमारे पास में हमारी पावर जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों था, क्या था तोरना फोर्ट में? तो माची क्या होता है कि फोर्टिफिकेशन ऑफ अ नेचुरल प्लेटू फॉर्म्ड ऑन द स्लोप ऑफ अ हिल।
तो जो हिल की स्लोप है वहाँ पर फोर्टिफिकेशन किया जाता है ताकि डिफेंड किया जा सके उस फोर्ट को। तो ऐसे दो माचीज थे, जैसे कि बुधला माची, झुंजार माची। झुंजार माची तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि पावरफुल डिफेंस जो है वो झुंजार माची से मिलता था, ठीक है। और इस फोर्ट पे एंट्री पॉइंट जो था वो सिर्फ और सिर्फ झुंजार माची से था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि झुंजार माची किस तरीके से डिफेंड कर सकता है एनिमी अटैक्स को। और दूसरी तरफ जो थी डीप वैलीज और बहुत ही डिफिकल्ट पैसेज था, बहुत हाई हिल्स थे। तो अगर कोई पर्सन वहां से आता भी और उसका गलती से थोड़ा भी बैलेंस लूज हो जाए तो वो उसकी डेथ हो सकती थी, क्योंकि वो पूरी वैली में जाके गिर जाएगा। तो इसलिए तोरना जो है वो महाराष्ट्र का एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्ट में से एक माना जाता था, जहाँ पे अच्छा तोरना नाम कैसे पड़ा? तो तोरना नाम है जो गॉडेस तोरनाजाई जिनका मंदिर था वहाँ पे तोरनागढ़ पे या तोरना फोर्ट पे, इसलिए इस फोर्ट का नाम जो है वो तोरना पड़ा, ठीक है। आदिल शाह ने ये ज़्यादा सोचा नहीं था इस फोर्ट के बारे में, और शिवाजी ने ये जल्दी ही जान लिया कि अगर हम लोग ये फोर्ट कैप्चर कर लेते हैं तो हाँ, हम लोग यहाँ पर हमारा हिंदवी स्वराज का फाउंडेशन जो है ले कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द ड्रम्स ऑफ स्वराज बिगिन टू साउंड। मतलब कि अब स्वराज के नगाड़े बजने शुरू होंगे, क्योंकि अब अगर हम लोग तोरना फोर्ट हासिल कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने आगे किया है, with a few select bands of Mauras, Shivaji descended into the Kannad valley, swift-footed like the deer and lion-hearted in courage. They raced to the top and captured the strategic positions in the fort. Tanaji Malusare hoisted the Maratha flag at the main entrance. Yesaji Kank, a trustworthy and loyal companion of Shivaji, posted his guards at important points. The fort was captured almost without any resistance, and the sky was filled with shouts of Shivaji Maharaj ki Jai. The first battle drums and pipes of Hindavi Swaraj had sounded, and their echo reverberated throughout the valley. Shivaji named this fort Prachandagarh. तो जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले पैराग्राफ में देखा था कि हिंदवी स्वराज का फाउंडेशन जो है वो तोरनागढ़ को हासिल करके, तोरनागढ़ को कैप्चर, तोरना फोर्ट को कैप्चर करके ही हो सकता है। और इसीलिए शिवाजी और उनके जो मारवाड़ थे वो कान्नाड़ वैली में धीरे धीरे किसी को खबर ना लगते हुए वो तोरनागढ़ पर पहुंचे। तोरनागढ़ उन्होंने कैप्चर किया, जिसमें तानाजी मालुसरे जो थे वो जिन्होंने फ्लैग जो है वो मेन एंट्रेंस पर लगाया। यसाजी कंक भी साथ में थे। शिवाजी महाराज ने जो है वो अलग अलग पॉइंट्स पे अपने गार्ड जो है वो लगा दिए गए थे, ताकि फोर्ट जो कैप्चर कर लिया है अब और किसी के हाथ में ना जा सके। और सब लोग जो थे वो चिल्ला रहे थे शिवाजी महाराज की जय, क्योंकि ये सबसे पहली बैटल थी जो शिवाजी महाराज ने जीती और हिंदवी स्वराज को स्थापित किया, ठीक है। शिवाजी महाराज ने बाद में इस तोरना फोर्ट का नाम जो है वो रख दिया गया, दैट इज प्रचंडगढ़। Blessings of Goddess Bhavani. Fort Torna then came under Shivaji's administration. He made a very careful survey of it and appointed officers such as a Maratha Kiledar, a Brahmin Sabnis, and Prabhu Karkhanis. The garrison included Mawlas, Kolis, Ramoshis, Mahars, and such brave men from many other castes and communities. अब देखिए, जब फोर्ट कैप्चर हो चुका है तो शिवाजी महाराज ने उस फोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट करके स्टार्ट कर दिया। अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग जो थे उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई। इन स्वराज ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज़ वर टू बी ट्रीटेड alike and no distinctions made on the basis of caste. देखिए यहाँ पे कास्टिज्म नहीं होता था, यहाँ पे सारी कास्ट को एक जैसा माना जाता था। As repairs to the fort started,
A surprise awaited the people. They discovered 4 metal pots filled to the brim with mohurs. The workers were overjoyed. They said that this was a gift to Shivaji from goddess Bhavani, who had blessed his efforts. All the money discovered was brought to Shivaji. No one thought of taking anything from it for himself. After all, it was the wealth of Swaraj. Shivaji felt greatly elated at this unexpected gift, which would enable him to pursue his ideal of Swaraj with added vigor. He felt that he was working under the benevolent eye of the goddess Bhavani. देखिए, जब रिपेयर वर्क शुरू हुआ तोरना फोर्ट का, या जिसको अब हम प्रचंडगढ़ बोल सकते हैं, तो उस टाइम पे 4 मेटल पॉट्स जो है मुहूर से भरे हुए, मतलब हीरे जवाहरात से भरे हुए 4 ऐसे पॉट्स मिले वर्कर्स को। वर्कर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। यही 4 पॉट्स वो शिवाजी महाराज के सामने ले गए और उन्हें वर्कर्स को लगा कि ये भवानी आई का जो है वो ब्लेसिंग्स है, गॉडेस भवानी का ब्लेसिंग्स है। तो इसमें से थोड़ा भी पैसा जो है किसी भी वर्कर ने लिया नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि ये स्वराज की वेल्थ है और ये शिवाजी महाराज के पास में लेकर हम लोग दिखाएंगे। और शिवाजी महाराज ने जब ये देखा कि ऐसे 4 पॉट्स मिले हैं, और वो बहुत ही खुश हुए कि इन पैसों से हम स्वराज की जो मुहिम है या स्वराज का जो मिशन है उसको और आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये गॉडेस भवानी जो है उनका शायद उनकी नज़र जो है वो शिवाजी महाराज पर है, जो एक अच्छा काम कर रहे हैं स्वराज का। Shivaji utilized part of the treasure found in the fort to purchase arms and ammunition. देखिए, जब जो ट्रेजर मिला फोर्ट में, उससे शिवाजी महाराज ने अलग अलग आर्म्स और एम्यूनेशन परचेज किए। द रेस्ट ही डिसाइडेड टू यूज फॉर अनदर प्रोजेक्ट विच वॉज ऑलरेडी इन हिज माइंड। तो बचा हुआ जो भी पैसा था, जो भी ट्रेजर था, वो अलग प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने वाले थे, जो उनके दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि अब आगे क्या करना है। अबाउट 15 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ तोरना इज द हिल ऑफ मुरुम्बदेव. Shivaji had his eye on it for a long time. This hill was steep and difficult of access and therefore of great strategic importance. तो steep hill थी मुरुमदेव की, और हिल ऑफ मुरुमदेव, और शिवाजी महाराज ने देखा कि ये 15 किलोमीटर ईस्ट ऑफ तोरना है, वहाँ से बहुत ही स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल सकता है अगर इस हिल के ऊपर हम कुछ बना दे तो। एंड देयरफॉर ऑफ ग्रेट स्ट्रैटेजी. आदिल शाह हैड एक्चुअली स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ फोर्ट ऑन दिस हिल बट हैड लेफ्ट इट अनफिनिश्ड. तो आदिल शाह जो है उन्होंने पहले ही इस हिल पे एक फोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो बीच में छोड़ दिया गया था. दिस हिल ऑल्सो वॉज नॉट वेल गार्डेड एंड शिवाजी डिसाइडेड टू कैप्चर इट. तो अच्छी तरीके से गार्डेड भी नहीं थी ये हिल, तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि चलो इसको कैप्चर करते हैं तो और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. The first capital of Swaraj. One day Shivaji climbed up the hill with a select band of his followers and took possession of the partially completed fort. जो मुरुमदेव की बात कर रहे हैं हम लोग, उस फोर्ट को उन्होंने कैप्चर कर लिया. The money found on Torna was used to complete the fortifications of मुरुमदेव. तो जहाँ पे जो ट्रेजर मिला था तोरना पे, उस बचे हुए पैसों से इसका फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया और ये फोर्ट जो है वो कंप्लीट किया. शिवाजी नेम्ड दिस फोर्ट राजगढ़. तो देखिए, राजगढ़ नाम दे दिया गया इस फोर्ट को. स्टोन मैसन्स, कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, वाटर कैरियर्स, अदर वर्कर्स, ऑल द पीपल गॉट बिजी. सब लोग बिजी हो गए सारी चीज़ें बिल्ड करने में. They built the Rajmahal, Baramahal and 18 workshops. Rajgarh became the first capital of Swaraj. तो राजगढ़ जो है, it is the first capital of Swaraj, जहाँ पे सारा काम काज चलता था. अब देखते हैं शिवाजी's rapid progress, और उसके बाद में शिवाजी द श्रीव्ड पॉलिटिशियन. तो ये 2 चीज़ें हैं इस लेसन के अंदर, और इसके बाद लेसन खत्म होने वाला है. चलिए देखते हैं शिवाजी's rapid progress. From then onward, Shivaji moved swiftly and captured one fort after another in Mawar. The whole country known as Baramawar, that is the 12 Mawars, was overflowing with joy and excitement.
The parties and Deshmukhs from many villages came and swore elegies to Shivaji. But Mawar had its own share of blacklegs, who were ever ready to put a spoke in the fast-moving wheel of Swaraj. Jealous of Shivaji's success, they complained to the Adil Shah collector at Shirwar. तो जैसा कि शिवाजी महाराज जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहे थे, एक के बाद एक फोर्ट्स कैप्चर करते जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जिनको इस ये जो स्वराज का जो मिशन था या जो स्वराज की मुहिम थी इससे भी जेलस हो रहे थे, शिवाजी की सक्सेस से जेलस हो रहे थे। तो उन्होंने आदिल शाह कलेक्टर जो है शिरवड़ पे वहाँ पे कंप्लेंट कर दी उन्होंने। द कलेक्टर डिस्पैच्ड मैसेंजर्स टू बीजापुर एंड इन्फॉर्म्ड आदिल शाह ऑफ शिवाजीज रैपिड प्रोग्रेस। तो यही जो कलेक्टर हैं उन्होंने अपने मैसेंजर्स जो थे बीजापुर भेजे और आदिल शाह को शिवाजी की जो रैपिड प्रोग्रेस है उसके बारे में बता दिया। शिवाजी द श्रूड पॉलिटिशियन। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक। Adil Shah was most surprised to get the news. He asked Shahaji Raje for an explanation. Shahaji Raje got himself out of this difficult situation by telling the Sultan that Shivaji Raje had probably taken over the fort for better administration of the Jagir. Shivaji also sent this message to the Sultan. I have taken possession of the fort for better administration of the countryside. We did this only in the interest of the Sultan. There was no evil design एट द बैक ऑफ दिस एक्शन। देखिए जब आदिल शाह को पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे ये न्यूज़ सुन के। तो उन्होंने शाहजी राजे से पूछा जो उनके कोर्ट में थे। शाहजी राजे ने इस सिचुएशन में से निकलने के लिए उन्होंने कहा कि शिवाजी राजे ने जो है वो फोर्ट्स जो है वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जागीर जो है वो आपकी अच्छी चले इसीलिए लिए, कोई बुरा इंटेंशन नहीं था इसके अंदर कि सुल्तान के अगेंस्ट जाने का। ये पोजीशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ कंट्री की बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही उन्होंने अपने अंडर लिए हैं। द टू फोर्ट्स ऑफ कोंडाना एंड पुरंदर टू had strategic locations. Shivaji used his political skill and took control of both the forts. The next fort to come under his way was Rohida. This was fast work indeed and there was nothing to stop Shivaji now. तो देखिए इसके बाद में भी शिवाजी महाराज ने पॉलिटिकल स्किल्स यूज करके पुरंदर, उसके बाद में कोंडाना, ये दोनों स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे अपनी पकड़ बना ली। और उसके बाद में और नेक्स्ट जो फोर्ट था वो था रोहिदा फोर्ट, जहाँ पर भी शिवाजी ने अपनी पूरी पकड़ बना ली थी। तो इसके अंदर हम इस लेसन में हम लोगों ने देखा कि स्वराज को अगर स्थापित करना था तो सबसे पहले अलग अलग स्ट्रैटेजिक पोजीशंस को हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और स्ट्रैटेजिक पोजीशंस मतलब कि बड़े बड़े फोर्ट्स हासिल करना ज़रूरी था जहाँ पे हम लोग डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर सकें हमारा खुद का। जैसे कि तोरना फोर्ट था, तोरना फोर्ट को जो नाम दिया गया था वो था प्रचंडगढ़, नाम याद रखना। उसके बाद में मुरुमदेव जो कि बाद में जाकर बना हमारे स्वराज का फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज, दैट इज राजगढ़, ठीक है। इसी के साथ प्रोग्रेस होती गई शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज ने अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज यूज करके कोंडाना, पुरंदर, रोहिदा ऐसे अलग अलग फोर्ट्स कैप्चर करने शुरू किए। तो इस लेसन में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक बटन भी दबा देना। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।